Yes, So, ma'am. Good morning. good morning, Ashwini ma'am. Good to see all of you here again in this live session. So, today we are going to talk about a unique, wonderful topic, a topic which is more like a passion to me now, which is related to inclusive education or inclusive classrooms. अब जब हम NEP 2020 के बारे में थोड़ा बहुत मेंटरिंग के दौरान बात कर चुके हैं, हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारी चॉइस से नहीं आते हैं. So we get admissions from students who belong to different communities from diverse backgrounds. So today in the session of inclusive classrooms, we will be talking about the kind of students that we get, how we are supposed to interact with them, and how can our inclusive classrooms be more engaging, entertaining, as well as informative. I'm going to share my screen. Let me know if it is visible to you all. Yeah. Is the screen visible? Ma'am, it is in process. Okay. Yes, now it is visible. Great, great. That's wonderful. Just quickly going for a slideshow mode so that we can go ahead and talk about it. All right then. So let's talk about inclusive classrooms, and we have the goal of education for all, leaving no child behind. सर्व शिक्षा अभियान बोलिए या फिर आप यूनिसेफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देखिए तो आपको यही पता चलेगा कि हमें एजुकेशन जो है उसको एक इंक्लूसिव फॉर्मेट में, दैट इज whatever the child is, whoever other the child is, whatever his capabilities are, interest जो भी उसका है उसको लेके हमें आगे बढ़ना है. तो चलिए हम पहले देखते हैं कि हम आने वाले 1.5 घंटे में क्या बात करेंगे. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टूडेंट डायवर्सिटी. तो स्टूडेंट डायवर्सिटी म्हणजे काय? तर जनरली आपण खूपदा असं म्हणतो की आमच्याकडे पीपल बिलॉंगिंग टू रिलिजन, कास्ट, जेंडर, रेस, एथनिसिटी हे मुलं येतात. अगदी बरोबर. पण त्याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणते स्टुडंट्स आपल्या क्लासरूममध्ये असू शकतात? त्यांना कोणत्या लर्निंग डिफिकल्टीज आहेत का? What is the exact meaning of a learning difficulty and a learning disability? इसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट, आज की डेट में मेरी क्लासरूम का कॉम्पोजिशन क्या है? क्या वो सही मायने में एक इंक्लूसिव क्लासरूम है? अगर नहीं तो आगे चल के क्या मेरे पास ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जहाँ पे मुझे एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ डील करना पड़े? हो सकता है मेरी क्लास में कोई डिसलेक्सिक स्टूडेंट हो, कोई फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हो, कोई गिफ्टेड चाइल्ड मेरी क्लास का हिस्सा बने. तो उसके लिए एम आई रेडी फॉर दैट? हाउ एम आई सपोज टू मेक माई क्लासरूम मोर इंक्लूसिव एंड एंगेजिंग? एट द सेम टाइम हम बात करेंगे इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ NEP 2020. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इज माई स्पीड ओके? कैन आई गेट सम थम्स अप टू टेल मी दैट वी आर ऑन द सेम पेज? Ashwini ma'am wanted to say something. I couldn't hear you, Ashwini. All right, I got the thumbs up. Thank you so much. तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और बात करेंगे टीचर्स की. The moment we walk into a classroom, वो classroom हमारा province हो जाता है. It's the kingdom. We are the rulers of that kingdom. We are the leaders of that kingdom. And मेरे kingdom में जो भी मेरे subjects हैं, जो भी मेरे students हैं, उनके लिए I am the one they are going to look up to. लोग मेरी तरफ देखने वाले हैं. So the leader of the classroom is the teacher. The moment I remember seeing a wonderful video, मैंने फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते देख रही थी कि टीचर्स की लाइफ जो है आज की डेट में स्पेसिफिकली व्हेन वी आर ओवरबर्डन्ड with a lot many things other than only taking the sessions or the lectures. We have to do a lot of paperwork,
related to work. We have to work relating to admissions. We have to work with the agencies that give us accreditation. या DT हो गया या Joint Directorate के office में अगर मेरा कोई काम है. So there are n number of things that we are supposed to work. And due to that stress, due to that tension, sometimes that frustration, that anxiety, that anger comes out in the classroom. So the video that I was talking to you about was of a Chinese teacher. So he was already overburdened. बहुत सारा काम के प्रति उसका टेंशन था, एंड ही वाज लाइक ओ माय गॉड. सो क्लासरूम के बाहर वो जा रहा है, और जब वो जाता है क्लासरूम के बाहर, वो 1 मिनट पहले गहरी लंबी सांस लेता है, चेहरे पे एक स्माइल लाता है और क्लासरूम का दरवाजा खोलता है. The video was all about how a teacher, even though is stressed, the moment he enters into the classroom, his entire persona, his entire personality changes. He is now only and only for the students who are there in front of him. और जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम्स की बात कर रहे हैं, तब तो हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि हम हमारे क्लासरूम्स में हमारे बच्चों को कुछ वैल्यूज इम्पार्ट कर सके. वैल्यूज सच एज टॉलरेंस, acceptance, empathy, and compassion. I'm sure you must have seen that video, and if you have not, please do. It's available on YouTube, it's available on Facebook also. एक gifted child होता है who is autistic as well as he's a little bit physically handicapped. And the video that I'm talking to you about is from a school in United States. So boxing का match होता है, और जो बच्चा बॉक्सिंग के लिए उतरता है, ऑटिस्टिक बच्चा, and the child who is fighting against him, pitched against him, is a normal child, a regular child. And the way he lets him win shows the kind of empathy and compassion the child has developed. The entire school, which is sitting over there, is cheering for that autistic child so that he gets that courage, that confidence that yes, I can do this. So हो सकता है आगे चल के, और NEP 2020 तो ये फोकस कर ही रहा है कि हमारे क्लासरूम्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स हो. So we might have a child who has some hearing difficulties. We might have a child who has physical disability. We might have a child who has some intellectual disability or is a differently abled or a special child. So when I am entering into a classroom, मेरी क्लासरूम में उतना कंपैशन, वैल्यूज मैं इंस्टिल कर पाऊं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए. क्या यहाँ पे कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा कि आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी क्लासरूम में do you have anybody who is a special child or needs some special attention? Anybody? If anybody wants to just share anything कि हाँ हमारे कॉलेज में है, and we have done this kind of training how to deal with students belonging to these diverse backgrounds. कोई भी, anybody, you can just unmute yourself and talk whatever comes to your mind. Anyone? Ravi sir or whosoever wants to just wants to talk to this about how we can develop not only acceptance but empathy in the classroom. I hope I'm audible to everybody. Yes. Yes, ma'am. All right, so let's move ahead. So I believe that if you have not shared your view, which means that अब तक हमारी क्लासरूम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. Okay, so पहले बात करते हैं about nature of diversity. So let us first understand. Yes. Preeti ma'am, you wanted to say something? All right.
So diversity needs not only to be expected, we have to expect कि any आज तक नहीं हुआ है, मतलब कभी भी मेरी क्लासरूम में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है. As I'm now and again repeating that with inclusive education, with inclusive classrooms being the focus, we will now get students who will come from variety of backgrounds, and we need to respect that. Not only respect that, but celebrate that. Why? Because it not only will challenge my creative abilities, it will not only give me an opportunity to teach, to interact with the children who probably need me more than others. आगे चल के हम देखेंगे कि कितने टाइप के लर्नर्स होते हैं और उनको मैं कैसे केटर कर पाऊंगी. How will I be able to help them, assist them, develop them into an individual who will be at some point in time employable? See, आज हम बात करते हैं about student development, capacity building programs, skill development initiatives, इतना जो Indian government put कर रहा है into upskilling and reskilling, इसका end point क्या है, outcome क्या है? आउटकम तो यही है कि बच्चा एम्प्लॉयबल बने, कुछ ना कुछ उसके लिए कमा सके, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस country. And when I talk about country, India is obviously a diverse nation. Not only in terms of languages, we have more than 22 languages, dialects, I'm saying, and so many states which have so many different cultures, religions. So we have an amalgamation of all these things. तो जब मेरी कल्चरल डाइवर्सिटी है, और ये हम बहुत बार देखते हैं जब फैशन शोज, कल्चरल प्रोग्राम्स हमारे इंस्टीट्यूट में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक ना एक तो फैशन शो में सेगमेंट होता ही है कि इंडिया के वेरियस स्टेट्स का हम लोग एक फैशन शो के थ्रू डिस्प्ले करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं कि हमारा कल्चर क्या है. सो फूड, क्लोथिंग, द लैंग्वेज, द डायलेक्ट, द काइंड ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स जो हमारे हैं, इस सब का कहीं ना कहीं मेरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ने वाला है. आप सबने नोटिस किया होगा जब नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, काफी बच्चे नंगे पैर कॉलेजेस में आते हैं, काफी लोगों के उपवास होते हैं, एंड वी शेयर दैट विद देम, राइट? इफ वी आर ऑल्सो हैविंग दैट काइंड ऑफ फास्ट, और रमजान के टाइम लोगों के रोजे चलते हैं, फास्ट चलते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं. सो वेन एवर आई हैव स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, I respect them and I will try to help them coming from that religion कि भाई okay, if this is the kind of fast that you have kept, or you are facing some physical problems due to it, I am going to help you in that particular thing. चाहे मेरी रेस कौन सी हो, मेरी एथनिसिटी. स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम कब आएगी पता है बच्चों को? जब इंडियन बच्चा दूसरे कंट्री में जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करने के लिए, तब वहां पे लोग he belongs to this particular race या इंडियन नेशनल स्टूडेंट है, तो लोगों के प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, आइडियाज होती हैं. जैसे मान लीजिए हमारे घर हमारी क्लासरूम में कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है, या गुजराती स्टूडेंट है, या स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू अ क्रिश्चियन फैमिली, हम एसोसिएट कर लेते हैं कि ओके, यू आर अ क्रिश्चियन, यू डेफिनेटली मस्ट बी मेकिंग सर्टेन थिंग्स व्हेन इट कम्स टू क्रिसमस. यू आर अ गुजराती, आपको तो ये चीजें बनानी आती ही होंगी. या आप साउथ इंडियन है तो आपके घर में दाल चावल नहीं, प्रॉबेबली इडली सांबार या साउथ इंडियन फूड ज्यादा बनता होगा. अब होता ये है दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जब एक सिटी में रहने लगते हैं तो ना कि सिर्फ वहाँ की भाषा सीखते हैं, बोलचाल सीखते हैं, पहनावा हम लोग अपना लेते हैं, बट हम लोग वहाँ के खान पान से भी अपना एक रूटीन बना लेते हैं. और जब हम ऐसे प्री कंसीव नोशन के साथ जाते हैं तब क्लैश आ जाता है, राइट? कल मैं एक मूवी देख रही थी नेटफ्लिक्स पे,
we have a ghost. So the movie talks about एक फैमिली मूव होती है इनटू अ हॉन्टेड हाउस, और उनकी जो नेबर होती है शी इज अ जापानीज गर्ल। और ये जो फैमिली है दे आर ब्लैक्स, ओके। अब होता ये है कि जब वो जापानीज गर्ल स्कूल में जाती हैं तो लोगों ने उसके लिए कुछ कुछ चीजें लिख के रखी होती है कि तुम तो राइस ही खाते होंगे, तुम तो ऐसा ही करते होगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड शी सेज टू द अदर स्टूडेंट कि लोग मेरे बारे में इतने प्री कंसीव नोशंस बना लिए कि मैं चाइनीज हो तो सिर्फ राइस ही खाऊंगी। भाई मैं इतने, आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन यूएस, मैं क्यों ऐसा करूंगी? आई एम नॉट नो लॉन्गर लिविंग इन जापान एंड देयरफॉर आई हैव left certain things behind. Similarly, हमारी क्लासरूम्स में भी जब हम जाते हैं तो कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज नोशन लेके जाते हैं, इट्स बट नेचुरल, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। बट इफ वी हैव समवन हु कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, आई नीड टू रिस्पेक्ट दैट। मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है? एम आई मेकिंग सेंस ओवर हियर? एनीबडी? नो मैम, ठीक है। ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ कमिंग टू जेंडर। जब मैं जेंडर के बारे में बात करती हूँ, जनरली हमारे दिमाग में मेल्स एंड फीमेल्स ऐसा ही आता है। Now, since I have joined Maharashtra National Law University, we had a seminar on National Commission से आए थे कुछ लोग, and we had a few transgenders from the Sarthi Trust। और ये जो सारथी ट्रस्ट है ये नागपुर में बेस्ड है। तो MX आंचल वर्मा नाम की ट्रांसजेंडर हमारे इधर लेक्चर देने आए थे। एंड माय गॉड, व्हाट ब्यूटिफुल कम्युनिकेशन शी हैड विद द स्टूडेंट्स। और उसने अपने मुद्दे इतने बखूबी रखे सबके सामने। एंड शी वाज टॉकिंग कि लोग सिर्फ जेंडर मतलब मेल्स एंड फीमेल्स, nobody talks about transgender, cisgender, non-binary, or for that matter LGBTQA community। आज की क्लासरूम में, मेरे क्लासरूम में हो सकता है कोई गे बच्चा है, कोई लेस्बियन बच्चा है, कोई सिस जेंडर बच्चा है, और मेरे साथ ये हुआ। So when I was just taking, that was my first class. I'll not reveal where and how, but it happened. So it was my first class, and I was interacting with the students, just talking to them about their hobbies, what kind of strengths they have, what is their background, because I wanted to understand what should I do and what should I don't do in my classroom. So the moment I was talking to them, उसमें से एक student खड़ा हुआ and he says, my name is so and I'm a cisgender। फॉर एटलीस्ट अ मोमेंट मेरा माइंड ने उसको डाइजेस्ट करने को टाइम लिया, क्योंकि ही सेइंग दैट ही इज अ सिसजेंडर एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, without changing the expressions on my face and without letting the others know in the classroom that we have to now look at him as if oh my god ये कोई alien है। He is a human being, he has his own sexual orientation and we should respect that। इसीलिए मैं कह रही हूं, आप कुछ भी आपकी क्लासरूम में जो होता है, be ready for that later on। And now people are coming out with their orientation, with their preferences, with gay couples being married, with lesbian couples being married, the pride march that is being taken across। सारथी ट्रस्ट हो गया, बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो आज मेरी क्लासरूम में हो सकता है। आई माइट हैव पीपल हु विल बिलोंग टू डिफरेंट जेंडर्स। So understanding their needs, their preferences, and what are they expecting out of me as a teacher। सी देखिए, मेरी क्लास में एक ही एक्सपेक्टेशन लेके बच्चा आता है कि आप मुझे डिस्क्रिमिनेट ना कीजिए। और यही बच्चों की ज्यादातर कंप्लेंट्स होती हैं कि टीचर उसको फेवरेटिज्म कर रही है, टीचर उसके प्रति बहुत ज्यादा झुकाव दिखा रही है, उसको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उसको हमेशा चांस दिया जाता है बोलने का, उसको हमेशा चांस दिया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का। तो बस यही नहीं करना है। वी हैव
to have a very neutral attitude when we enter into a classroom, because we never know what gender will come in front of us, and irrespective of that we have to deal with them. Now coming to disability. जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ज्यादातर लोग डिसेबिलिटी मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी की ही बात करते हैं, और इसके पहले भी पीपल बिलोंगिंग टू डिसेबिलिटीज हैड द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंतर्गत भी एडमिशन मिलता था, चाहे वो पार्शियल ब्लाइंडनेस हो, डेफनेस हो, लॉस ऑफ अ लिम्ब हो, या फिर स्टटरिंग, स्टैमर, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं ये भी इसमें अभी आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज तक जो नहीं हुई है, which is people with special needs, gifted children, people having mental retardation, or whose intellectual capabilities are not matching as per the normal standards, people having autism with cerebral palsy are not a part of mainstream education. रीजंस इसके बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि वी रिक्वायर स्पेशल एजुकेटर्स व्हेन वी डील विद पीपल विद डिसेबिलिटीज, जैसे कि ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन। और जब मुझे कोई स्टूडेंट हु कम्स विद दीज स्पेशल नीड्स, आई शुड बी इक्विप्ड। अब आपका सवाल आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा, पर ये तो हमारा काम है नहीं, आज तक तो मैंने सीखा ही नहीं है कि एक स्पेशल बच्चे के साथ कैसे डील किया जाए। इसीलिए मैंने यही पहली लाइन लिखी है कि आप एक्सपेक्ट अभी कर लीजिए कि आ सकते हैं। विद इंक्लूसिव एजुकेशन टेकिंग शेप, हो सकता है आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा आए जो probably not very high mental retardation, but at least low mental retardation. Somebody who might be deaf, partial deafness, partial blindness हो सकता है। इसीलिए we should understand, कुछ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखिए, तारे जमी ये मूवी आने के पहले डिसलेक्सिया तो लोगों बात भी नहीं करते थे डिसलेक्सिया के बारे में। जब हिचकी मूवी आई रानी मुखर्जी की, तब टूरेट सिंड्रोम के बारे में बात करना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे लोगों में अभी अवेयरनेस आ रहा है, वैसे वैसे लोग इंक्लूसिव क्लासरूम्स की तरफ बढ़ने लगे हैं। क्या किसी को कोई सवाल है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी, मैं इसके बारे में आगे भी बात करूंगी, पर अभी अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। No? All right. So I'll move ahead and talk about religion and language. What happens is, when I talk about language specifically, because religion I have already given you examples, that how we need to understand that yes, if someone belongs to this particular religion, they have certain norms, certain beliefs, certain value systems, which I need to respect. Again, sharing an video, rather giving an example. I think it was New Zealand or UK team which won the World Cup, and they were opening the bottle of champagnes when they were receiving the trophy. So one of the individuals who belonged to the Muslim religion, obviously for them, alcohol is something which is prohibited. So he just backed out, and the other players respected that. See, what happens is, जब आप एक टीम में काम करते हैं तब आपको वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. You will have to respect that if I have someone from, say, a different religion, there are certain ideologies, practices that he follows, then yes, we have to do it. Again, sharing one very beautiful example. It was in Europe. So there are various football clubs, as you very well know. So in the football club, there was this child who was belonging to the Sikh community, okay, Sikh religion. So वो turban बांधता था. So इसके पहले के जो भी मैचेस थे, तब किसी ने कोई objection नहीं उठाया to the turban. But in one of the final matches, one of the coach or the referee said that you have to remove that turban. अब देखिए,
टीम स्पिरिट क्या होती है, जितने भी उसके टीम के बच्चे थे उन्होंने ये नहीं बोला कि तू भाई निकल बाहर, हम तो हार जाएंगे तेरी वजह से। उन सब ने वो मैच फोरगो किया, इंक्लूडिंग द कोच। they respected that and they celebrated that कि we don't mind having an individual but वो हमारी टीम का बंदा है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। so come what may, this individual is a part of my team and I will forego the match, final match उन्होंने छोड़ दिया, saying no, we won't play if this player is not allowed to play। that is the kind of value हमें हमारे स्टूडेंट्स में इंस्टिल करना है। दैट मे बी आप जब आगे चल के ऑफिस में काम करने जाएंगे, सी द एज आई टोल्ड यू earlier also, the aim of educating them is to make them employable, to be a responsible citizen of this country. How can they be responsible when they start appreciating others, being a part of a team which is not breakable? तब हम जाके उन्हें कह पाएंगे कि ओके, नाउ आई हैव डन समथिंग गुड फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज यहाँ पे लिखी हैं कि डाइवर्सिटी कैसे होती है क्लासरूम में। एंड दिस हैज बीन टेकन from IGNOU's thing on eGyanKosh. If you want, you can just type out what are inclusive classrooms. You will get the entire PDF. So here there are two students who have enrolled in the BA program. अंकित जो कि बहुत एफ्लुएंट अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, उसके फादर एक बहुत अच्छे एमएनसी में काम करते हैं, माँ एक स्कूल में टीचर है। तो अंकित के पास सब सुविधाएं हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, ही इज वेल वर्स्ड विद टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। दूसरी साइड में बच्चा है हमारा भार्गव, जो एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहां से आता है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा पुअर है और इसके पहले उसने बहुत टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जो है उसका कम रहा है। अब जब अंकित बीए प्रोग्राम में आया तो उसने बहुत फटाफट चीजें ग्रास्प करना शुरू कर दिया, पर भार्गव जो है, जो एक छोटे शहर से आया हुआ है, उसे वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आना शुरू कर दिया। देखिए क्या होता है जब हम एक दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कहीं कम हूं, और यहाँ पे टीचर्स का रोल आता है कि इफ आई हैव अ स्टूडेंट हु हेल्स फ्रॉम अ लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा, comes from a background which is not very well to do, I have to be there to support him and not let him lose his confidence. See, what will happen is कि हम अगर बहुत ज्यादा भी उसकी तरफ ध्यान देंगे तो लगेगा कि अरे भाई टीचर तो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है हमारी तरफ। ऐसा भी नहीं करना है, बट उसे ये एहसास दिलाना है that you are here to learn, you are here to study, और बेटा तुम कर पाओगे, मैं हूं। अगर देखिए, और ये होता भी है, मेरे साथ ही हुआ है। मेरे जब मैं एमबीए प्रोग्राम में पढ़ाती थी तो वहां पे एक हमारी स्टूडेंट थी, एंड शी केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज नियर पांडुरना डिस्ट्रिक्ट, सो नियर यवतमाल, उसके भी आगे पांडर कवड़ा के भी आगे उसका एक छोटा सा विलेज था। उसके पास ऑब्वियसली फार्मिंग फैमिली ही थे। उसके पास लैपटॉप नहीं था, डेस्कटॉप तो बहुत दूर की बात थी, नहीं गांव में ही नहीं था किसी के पास, सिर्फ स्मार्टफोन था। तो वो अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है लिख के फोटो निकाल के भेजती थी। आई यूज टू रियली अप्रिशिएट दैट गर्ल कि इतनी मेहनत कर रही है, क्यों कर रही है? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर अ फैमिली, कमाना चाहती है फैमिली के लिए। तो जब फाइनल सबमिशन की बात आई तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप ये सब हाथ, मुझे हैंड रिटन तो आपने सब दिखा दिया, मैंने अप्रूव भी कर दिया है, पर सबमिट तो बेटा आपको हार्ड बाउंड कॉपी करनी पड़ेगी, तब आप क्या करोगे? शी सेड मैम मैं किसी कैफे में जाके बैठूंगी एंड आई विल ट्राई टू वर्क इट आउट। मैं बोला आपके पास पैसे हैं बेटा, आप इतना कर पाओगे? एंड शी सेड हाँ मैम मैंने थोड़ा सा बचा लिया। आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हर बॉडी लैंग्वेज एंड फेस कि नहीं था। ऑब्वियसली आज हमारे कॉलेजेस में हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं,
तो हम बच्चों को वो लैब्स यूज करने की सुविधा तो देते ही देते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए टाइम खत्म हो जाता है, कॉलेज खत्म होने की टाइम है, कंप्यूटर लैब बंद करने का टाइम है, आप जरूर उस स्टूडेंट की उतनी मदद कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर लैब उसके लिए ओपन की जाए। अगर उसको और कोई मदद चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग देम इन गिविंग प्रेजेंटेशंस और मेकिंग प्रेजेंटेशंस, उतना भी अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे तो वो बच्चा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डिप नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। आपके साथ भी आई एम श्योर ऐसी काफी बार सिचुएशंस आई होंगी जहां पे आपने आपके स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया होगा। वुड एनीबडी लाइक टू शेयर एनीथिंग हियर? एनीवन? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो हमने सबने किया हुआ है या देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। एनीवन? Nobody? I hope I am audible still. Yes. Yes. Okay, okay. दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली जेंडर का दिया हुआ है। राधा 14-year-old कमिंग फ्रॉम फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, बहुत एम्बिशियस, डिफेंस ज्वाइन करना चाहती थी, बट ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर, व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, बहुत बार ऐसा होगा कि स्टूडेंट्स, और जब मैंने आपको मेंटरिंग और काउंसलिंग में बताया था कि स्टूडेंट्स आपके पास कोई ना कोई जब प्रॉब्लम लेके आएगा, हाउ वी आर सपोज टू डील विद देम, asking them to come over their fears। आपको हो सकता है उनके फैमिली से बात करना पड़े कि ठीक है प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हरासमेंट है तो क्या कोई और तरीका है कि वो स्कूल पहुंच पाए या कॉलेज पहुंच पाए आपके, सो दैट हर एजुकेशन स्टार्ट्स कंटिन्यूइंग। काफी बार ये होता है और बहुत आम बात है ये कि मैरिज, so in maybe till the girl reaches final year, she's married off. Sometimes as a counselor, you have to help them understand that what are the pros and cons, आप ये कर सकते हो क्या, family से बात करना, and helping them understand कि your child has the potential and you should give them a chance to go ahead. But then again, depends on situation to situation, how far we can go and engage in such kind of services. आगे बढ़ते हैं टीचर्स रोल इन अ क्लासरूम के बारे में। See, accepting and caring mindset is the most important key to support diversity learners. So, सबसे पहले जो मैंने कहा, गेट टू नो एक्टिविटीज कीजिए। जब आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू होती हैं, the very first few lectures should be get to know activities. Let them open up. Open up in terms of not only their what are their strengths and weaknesses, but what kind of problems that they have. हो सकता है बच्चा एकदम से ओपन अप करके बात ना कर पाए। पोस्टर कंपटीशन, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, मूवी का रिव्यू, आप एक छोटा सा मूवी देख सकते हैं उनके साथ जहां पे उन्हें ये बोल सकते हैं कि दंगल मूवी फॉर एग्जांपल आपने दिखा दी कि आपने इस मूवी से क्या सीखा, कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, क्या आपकी लाइफ के किसी भी इंडिविजुअल के साथ आप ऐसे कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आप जब ऐसे क्वेश्चंस उन्हें डालेंगे उनके आगे, तब धीरे धीरे उनसे वो आप बातें निकलवा पाएंगे जो शायद वो नहीं बोले डायरेक्टली। सो गेटिंग टू नो एक्टिविटीज और राइटिंग लेटर्स डिस्क्राइबिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट इज अ मस्ट डू थिंग बाय ऑल टीचर्स। लेटर राइटिंग एक बहुत, और लेटर राइटिंग में ना आप लैंग्वेज का बैरियर मत रखिए। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज अगर आपको कोई आती है तो आप जरूर बच्चों को बोलिए कि आप encourage them to talk to you. The more they talk to you, the more you will understand about their background. Somebody might be living in a locality जहां उसे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, और जब आप क्लासरूम एग्जाम्पल्स देंगे तब आप वो उनसे कोरिलेट कर सकते हैं।
Support a student's interest by attending his or her ड्रामा परफॉर्मन्स हो, स्पोर्टिंग इव्हेंट हो. आजकाल आपल्या सगळ्या कॉलेजेसमध्ये आपण जेव्हा कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज घेतो, मेहंदी, रंगोली, फेस पेंटिंग या उसके अलावा हम स्किट्स लेते हैं, ड्रामा, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया है, बहुत सारे एक्टिविटीज कराते हैं. करना सिर्फ यही है कि अगर आपको पता चलता है आपके क्लास में से 10 लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, आप जरूर उनका गाना सुनने जाएं, अप्रिशिएट करें. द मोमेंट दे सी यू देयर in the audience, clapping, cheering, telling them that I am here to listen to you, that kind of acknowledgement when you give them, the bond that you share with your students becomes much stronger. Talk to the students what is going on in their lives and show genuine interest in their responses. जैसे मैंने कहा, और ये मेंटरिंग के थ्रू पॉसिबल है, और इसीलिए मेंटरिंग एंड काउंसलिंग का जो रोल है इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स बिकम्स मैनीफोल्ड. मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेंटर का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंक्लूसिव क्लासरूम. Constantly reminding your students that आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए. कोई बच्चा बोलेगा कि अब तो मैं ना देखना फर्स्ट आके दिखाऊंगा, एंड इफ द स्टूडेंट इज लैकिंग इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप उसको जरूर वो दिखाएं. ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनाना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं. यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन समवेयर. टेल देम दैट यस, दिस इज योर गोल, दिस इज हु यू आर, और ये जो बीच में की गैप है बेटा आप ही कैसे कर पाओगे. एंड at the same time growing academically and emotionally, that is accepting others in the classroom as well. क्यों मैं इतना इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में passionate हूँ is because I have an online learning platform called as Prayas Make Learning Fun. ये Facebook पे भी मेरा पेज है, और fun learning prayas at blogspot.com, ये मेरा ब्लॉग भी है. So the reason why I want everyone to be aware about inclusive education is that because I conducted a few surveys to understand the expectations of teachers from inclusive classrooms. तो हमने नागपुर के 50-60 स्कूल्स का सर्वे किया और ये पाया कि टीचर्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स के लिए रेडी नहीं हैं. क्यों रेडी नहीं है? बिकॉज दे से हम तो ट्रेंड ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग स्टूडेंट्स. Point number one. Second, the kind of infrastructure that we need when it comes to taking care of differently abled or gifted students, we don't have that necessary infrastructure. हम NAAC क्राइटेरिया में जो लोग हैं वो जानते होंगे कि रैम्प्स बनाना जरूरी है, कि फिजिकल डिसेबल्ड अगर बच्चा है और आपका कॉलेज अगर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम सेंटर है तो आप उस बच्चे को बिल्डिंग के अंदर तक कैसे ले जाएंगे? व्हील चेयर बाउंस, व्हील चेयर्स होनी चाहिए, या फिजिकली डिसेबल्ड या ऐसे लोगों के लिए वॉशरूम्स अलग होने चाहिए. जब मैंने जेंडर की बात की थी, मैंने एग्जाम्पल बताया था MX आंचल का, एंड शी आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, आपकी इतनी बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी है, क्या आपके पास थर्ड जेंडर के लिए वॉशरूम्स हैं? We were speechless. We did not have at that point in time. But now we have. After that, we started constructing washrooms for third genders. And I'm sure every institute now must take these steps to have a separate washroom for a third gender. Once you start doing these very small steps, building ramps, having wheelchairs, having separate washrooms, these are the steps to making your institute or your classroom an inclusive classroom, or a classroom wherein diversity in all forms is respected. Okay, so what you need to consider: three things that I need to collaborate with: teachers, parents, students. हम कई बार जो सेकंड पॉइंट है ना, कोलैबोरेटिंग विद द पेरेंट्स, यहाँ पे मार खा जाते हैं.
हमें लगता है इट डज नॉट कम इन टू माई एम्बिट, या वो एक्स्ट्रा की झंझट कौन पाल लेगा. Why should I now invest myself emotionally, physically, spend my resources and give my contact number to the parents, और फिर वो कभी भी कॉल करेंगे, and why to disturb my peace of mind. But if there is a genuine problem, if there is a situation wherein a student of yours requires your help, you have to talk to the parents, make them understand how can the child be developed with certain things. When it comes to collaborating with students, आप आपके क्लास के बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये अवगत करा सकते हैं कि भाई आपके साथ जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, he requires some special attention, he requires your support, your cooperation, and when you do that, automatically there would be a kind of unity, a team spirit among the children. Collaborating with teachers also becomes important. Say, for example, a student is weak in mathematical subject or accounts for that matter. तो ऐसी situation में we can talk to the teacher and ask them, request them to have some special classes for children who are not able to cope up with a particular subject. So communicating within the classroom, creating platforms for sharing thoughts, and being respectful, trustworthy, and non-judgmental are the things that we have to keep in mind when we are taking care of an inclusive classroom. Now, coming to the next point, which is learning difficulties. Now, learning difficulty, yeah, anybody wants to say something? Uh, अलग अलग टाइप के इश्यूज जो रहेंगे वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ओके, या देख सकती हूँ. क्या क्या टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे उसके बारे में बात करती हूँ. आई होप माई स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू यू ऑल. Yes. ओके, तो अभी बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में. सो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, यहाँ पे बच्चे का, स्टूडेंट का जो कैपेसिटी है फॉर इंटेलिजेंस या कैपेसिटी फॉर लर्निंग अक्रॉस ईच एंड एरिया ऑफ लाइफ, वहां पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है. लर्निंग डिफिकल्टी मतलब हम कहीं ना कहीं एक रोड़ा आ रहा है, कोई ऑब्स्टिकल है जो हिंडर कर रहा है. इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लर्निंग. हो सकता है कि उसे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इशू हो, पूरे ओवरऑल इंटेलिजेंस पे इससे कोई लेना देना नहीं है. ये परमानेंट नहीं है. कुछ जैसे बच्चे होते हैं फोनिक्स के थ्रू सीखते हैं, या उनको धीरे धीरे सिखाना पड़ता है तब वो समझते हैं. तो ये परमानेंट नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चला जाएगा. बट लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ये लाइफ लॉन्ग रहता है, और इंटेलिजेंस और कैपेसिटी टू लर्न पे इसका अफेक्ट होता है. अब आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपने ये 4 मेजर लर्निंग स्टाइल्स देखे होंगे, इसीलिए मैंने लिखा है बैक टू स्कूल. बैक टू स्कूल बिकॉज हमने ये कहीं ना कहीं देखा है, पढ़ा है, सुना है. एनीबडी हु हैज नॉट हर्ड ऑफ दीज मेजर लर्निंग स्टाइल्स बिफोर? हो सकता है कि नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना हो. विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक, हम वैक बोलते हैं इसको, या वार्क भी बोलते हैं. Anybody who has not heard of this? So I believe everybody has. कुछ बच्चे जो हैं, आपने भी देखा होगा, क्लास में जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो पावर पॉइंट स्लाइड्स की तरफ देखते हैं, राइट? विजुअल, बिकॉज उनको प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, वीडियोस, इससे बहुत फास्ट लर्निंग होता है. ऑडिटरी, कोई बच्चे होते हैं वो आपकी तरफ देखते हैं, उनका ध्यान पावर पॉइंट की तरफ कम, आपकी आवाज पे ज्यादा रहता है.
देयर ऑडिटरी, क्योंकि वो बच्चा जितना इनपुट ले रहा है, बिकॉज यू आर स्पीकिंग, दे आर सिंपली हियरिंग इट आउट, उनका ध्यान वहां है। कुछ बच्चे हैं रीडिंग राइटिंग, कुछ बच्चे आपने देखा होगा आप जब बोल रहे हैं दे आर राइटिंग इट डाउन। ओके, टेक्स्ट हैवी सोर्सेज होता है। ये बच्चे ऐसे रहेंगे जो लाइब्रेरी से बुक्स निकालेंगे, गाइड्स निकालेंगे, खुद का रीडिंग मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। रीडिंग राइटिंग में ज्यादा फोकस होता है। काइनेस्थेटिक, जब एक्सपेरिमेंट्स करके, लाइव एग्जांपल्स देख के, खुद फील्ड पे जाके सीख के आना, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जिन बच्चों का रहता है, वो थे काइनेस्थेटिक लर्नर्स। I urge each and every one of you present in this session to identify the kind of learners you have in your classroom. और ये कुछ नहीं, आप एक हफ्ता भी अगर आपके बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत आप डिमार्केशन कर पाएंगे who belongs to kinesthetic, who is more auditory, who is more into reading writing, who is more of a visual learner. Once you identify कि मेरी क्लासरूम की स्ट्रेंथ अगर 100 बच्चों की है, 100 बच्चों में से 80% बच्चे अगर मेरे विजुअल लर्नर्स हैं, तो मेरी टीचिंग स्टाइल शुड हैव मोर वीडियोस, मोर प्रेजेंटेशंस, मोर डायग्राम्स। अगर मेरे क्लासरूम के मैक्सिमम बच्चे आर इनटू ऑडिटरी, तब मुझे मोर ऑफ स्पीकिंग स्किल्स मेरी उतनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, वेर आई कैन हैव अ मिक्स ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? सेंस बन रहा है कि कैसे हम हमारी क्लासरूम में लर्निंग स्टाइल्स आइडेंटिफाई कर पाए? एनीवन हियर? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, madam. ग्रेट, सो लेट अस गो अहेड। और ये तो आपको नैक में बनानी ही पड़ती है डॉक्यूमेंट, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बनाई भी होगी। स्लो लर्नर्स, एवरेज लर्नर्स एंड एडवांस्ड लर्नर्स। नैक में क्वेश्चन ही है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज 3 टाइप ऑफ लर्नर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स आर यू टेकिंग टू टैकल दीज 3 टाइप्स ऑफ लर्नर्स। स्लो लर्नर्स कैसे पहचाने? तो ऑब्वियसली पुअर ग्रेड्स हैं, टेस्ट में बार बार फेल होना, असाइनमेंट्स नहीं देना टाइम पे, क्लासरूम में पार्टिसिपेशन कम होना, हमेशा उनको मोटिवेशन की नहीं बेटा करो, क्लास में आओ, ऐसे टाइप की चीजें मुझे बार बार उनसे करवा लेनी पड़ेंगी। दोज आर स्लो लर्नर्स। ये तो आप मार्कशीट के थ्रू ही पता कर पाएंगे। एवरेज लर्नर्स जो किसी किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर पाएंगे, किसी किसी सब्जेक्ट में बहुत एवरेज रहेंगे। सो कंसिस्टेंट होते हैं, इनका ऐसा बहुत अप एंड डाउन नहीं रहता है। तब मिडिल वंस आर द एवरेज लर्नर्स। पर मोटिवेशन लगता है बीच बीच में कि नहीं चलो करो, आप कर सकते हो, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स। हमेशा नहीं, बट हाँ डिपेंडेंसी तो बहुत रहती है। स्लो लर्नर्स को तो डेफिनेटली आपको आउटसाइड द क्लासरूम हेल्प करना ही पड़ेगा। एवरेज लर्नर्स कुछ हद तक टीचर्स को डिपेंडेंट रहते हैं, स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट्स में जहां उन्हें दिक्कत होती है। एडवांस लर्नर्स जो हैं, इनके ग्रेड्स अच्छे रहेंगे, दे आर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेट्स इन ऑल द कॉम्पिटिशंस, थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन द योर इंस्टीट्यूट। टीचर्स फेवरेट्स होते हैं जनरली एडवांस लर्नर्स, कि टाइम पे आएंगे, टीचर्स की हेल्प करेंगे, एक्टिव रहेंगे, क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए काम करेंगे, एंड दे आर ऑब्वियसली हाई अचीवर्स, जो कि दिख ही जाता है। अब ऐसे बच्चों को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तो मैंने यहाँ लिखा है बिहेवियरल ट्रेट्स, एकेडमिक ट्रेट्स, और कैसे हमने उन्हें इंक्लूड करना है। तो 2 आर्ट्स के मैं बारे में बात करूंगी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो सबसे पहले देखते हैं बिहेवियरल इश्यूज क्या आ सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जब अगर हमारी क्लासरूम में कोई स्टूडेंट है बिलोंगिंग टू एनी जेंडर, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा, ऑल द रिलीजन्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड, अगर कोई भी बच्चा इज नॉन पार्टिसिपेटिव, प्लीज आप देखिए कि व्हाई is the person not participating, is shy and reserved, पहले नहीं था पर अचानक से there has been changes in the behavior, what are the reasons behind it, is all the time angry, frustrated कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, assignment submission time पे नहीं है,
पुअर हाइजीन है, ग्रूमिंग अच्छा नहीं है बच्चे का, and is not attentive in the classroom. When you are teaching, say half of the students are listening to you, और ये बच्चा अगर खिड़की के बाहर देख रहा है, वॉच की तरफ देख रहा है, is just finding out ways to walk out of your classroom, please try and talk to the student. Understand what are the problems. Is it because he is not able to understand what is being taught in the class? हो सकता है आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में बदलाव लाना पड़े. If you are continuously talking in the English language and the student is not able to understand that, probably you need to have a mix of the regional language of the area where आपका institute is situated. That is one thing you can do. Second is maybe the pace, जिसकी speed है, और इसीलिए मैं बार बार मेरे सेशंस में पूछती हूँ कि क्या मेरी स्पीड ओके है, डू आई नीड टू स्लो डाउन. ऐसे क्वेश्चंस अगर आप बार बार पूछेंगे क्लास में तो आपको पता चलेगा. जब हम क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं फॉर फीडबैक, रिपीटिंग वॉट एवर यू हैव टॉट इन द लास्ट 45 मिनट्स, तो अगेन यहां से भी आपको पता चलेगा कि वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट. अब अकेडमिक क्या क्या पॉइंट्स है जहां पे आप ध्यान दे सकते हैं. नॉन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स. नाउ देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस. बच्चा लेजी हो सकता है, प्रोक्रास्टिनेट कर सकता है, किसी का कॉपी करके आपको दे सकता है, बट एज ए टीचर हमें तो पता है किसने किसका कॉपी किया है. सो इफ यू कम टू नो दैट द स्टूडेंट इज copying somebody's or is not submitting it at all, then that is an area that we need to look for. Low scores, constant low scores आ रहे हैं, attendance issues है, क्लास में ही नहीं आ रहा है बच्चा, राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, इलेजिबल राइटिंग है बच्चे की, कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं बच्चे को कि असाइनमेंट सबमिट करो, या क्लासरूम में लेट मत आओ, या क्लासरूम को डिस्टर्ब मत करो. ऐसे अगर रिमाइंडर्स देने पड़ रहे हैं तो we can understand there are some issues that needs to be identified with the help of a professional counselor. अब अगर आता भी है बच्चा ऐसा कोई हमारी क्लासरूम में, आप उसको reassure कीजिए that we are going to help you out in this situation. Every institute has a remedial class. तो वो रेमीडियल क्लासेस में आप उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, असिस्टेंस दे सकते हैं, एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर बहुत काम होना बाकी है, हम क्या करते हैं, एक ही स्क्वायर पेग में सबको फिट करने की कोशिश करते हैं. द क्वेश्चन पेपर रिमेन्स द सेम. आई रिमेम्बर जब मैंने क्वेश्चन पेपर सेटिंग सीखा था, तब जो if I remember him right, he was one Dr. Pandey. I don't think that he passed away, if I'm not wrong. So he used to tell me, मैम ना आप बहुत सारे क्वेश्चंस और फास्ट बोलते थे, बहुत एजेड थे, बहुत अच्छे थे, और मॉडरेशन में बैठा करते थे और बोलते थे आप ना बहुत एक ही टाइप के क्वेश्चंस बना देते हो. मैम जब क्वेश्चन बनाओगे ना तब थोड़ा सा सोचना, हर टाइप का बच्चा आंसर करना है. एक क्वेश्चन मैम थोड़ा इजी रख लेना आम जनता के लिए, सब कर पाए. एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, और एक क्वेश्चन जो है जिसको आप आपके हिसाब से बनाए पाए. तो जब हम इवैल्यूएशन लेते हैं क्या हम ये सोचते हैं, डू वी कीप इन माइंड द काइंड ऑफ लर्नर्स दैट आई हैव इन माय क्लासरूम? Probably not. And therefore, if we are talking about inclusive classrooms, we have to talk about different styles of evaluation. गौर गोपाल दास के एक सेशन में सुन रही थी फेसबुक पे, और उन्होंने कहा था कि एक, एंड आई एम श्योर आप सबने भी सुना ही होगा या पढ़ा होगा, कि एक क्लासरूम है जिसमें एक फिश है, एक डॉग है, एक ईगल है और एक शेर है, और सबको, और एक चीता है रातर, और सबको बोला जाता है कि अभी आपकी रेस लगेगी. कौन जीतेगा रेस में? एक डॉग, एक चीता, एक ईगल और एक फिश. दौड़ने वाली रेस है, कौन जीतेगा? You have to talk to me so that I know that you are listening to me. Should I repeat my question?
ऐकायला येत आहे मॅम, बट ही रेसच फेअर नसेल, कारण वेगवेगळ्या यांच्या वेगवेगळ्या हे आहेत ॲबिलिटी आणि त्याच्यानुसार त्यांचं इव्हॅल्युएशन व्हायला पाहिजे. Exactly, Sheetal ma'am. This is not a fair race. The cheetah will win the race because he is meant to run. उसके पास वो ability है. तो आप अगर एक फिश को फ्लाई करने के लिए बोलेंगे, एक ईगल को स्विम करने के लिए बोलेंगे, नहीं कर पाएगा. सो इफ माय लर्नर का वेरिएशन इतना अलग है, तो मेरा इवैल्यूएशन प्लान एक कैसे हो सकता है? So if I have a slow learner in my classroom, I should have a different kind of evaluation plan. If I have a learner who is more of a visual learner, मुझे उसका evaluation plan अलग लेना पड़ेगा. If I have a dyslexic student in my classroom, और जब मैं disabilities के बारे में बात करूंगी, dyslexia, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अब ये जो चीजें होती हैं इनका तो इवैल्यूएशन पैटर्न ही अलग होना चाहिए. And therefore, as teachers, we should learn to have different kind of evaluation plan for different kind of learners. So what are the various types of learning disabilities? एक होता है APD, which is auditory processing disorder. मतलब sounds जो होते हैं ना, उसका हम वो बच्चा सेंस नहीं बना पाता है. बैकग्राउंड नॉइज जो है उसको वो ब्लॉक नहीं कर पाता है. मान लीजिए बाहर डीजे बज रहा है आपके कॉलेज के, और आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है. बाकी के बच्चे शायद वो डीजे का साउंड ब्लॉक कर पाए बिकॉज दे आर यूज्ड टू दैट, वो कर पाएंगे. ये बच्चा नहीं कर पाएगा, वो दोनों साउंड्स मिक्स करने लगेगा और his learning will not take place. Then comes dyscalculia, which is numbers and mathematical skills. Dysgraphia मतलब fine motor and handwriting, तो बच्चा लिख नहीं पाएगा, राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी. Dyslexia, जैसा B के जगह बच्चा D लिखता है, ऐसा टाइप की. So they reading and language processing skills में issues होते हैं. नॉन-वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे विजुअल, स्पैटियल एंड सोशल स्किल्स बच्चों के इश्यूज होते हैं, जो बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन इंटरप्रेट नहीं कर पाता है. सो व्हेन इंटरैक्टिंग विद चिल्ड्रन हु आर हैविंग नॉन-वर्बल डिसेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाता है because they do not interpret body language या facial expression. Then visual perception या visual motor deficit, जैसे राइटिंग में गलती करना, उल्टा लिखना, या पेंसिल या पेन की इतनी टाइट ग्रिप होती है कि उसकी वजह से उन्हें इश्यूज आते हैं, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका बराबर नहीं चलता है. वी आर नॉट टेकिंग अ साइकोलॉजी क्लास and therefore I'm not going to go into details कि इसकी वजह से कौन सा ब्रेन का एरिया अफेक्ट होता है. But as teachers who are gearing up for NEP 2020, at least इनके नाम हमें पता होने चाहिए और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये हमें पता होने चाहिए. आगे बढ़ते हैं. Inclusive classrooms where the teacher welcomes everyone. So inclusive education is an ever evolving approach that requires ongoing reflection and continuous enhancement. We never know how many type of learners my classroom has, how many disabled students will my classroom has, how diverse my classroom will be. So as a teacher, I need to identify the type of disability the student will have. Generally देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी तो हमें पता चल जाएगी. फॉर्म भरते टाइम ही बच्चा लिखता है कि ओके आई विल नीड somebody टू राइट बिकॉज आई एम डिसलेक्सिक, वो एडमिशन लेते टाइम वो सर्टिफिकेट भी सबमिट कर पाएगा. बट इफ द डिसेबिलिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इफ द चाइल्ड इज अ स्लो लर्नर, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? With the help of a professional counselor, maybe talking to the parents, making them understand कि आपको इसको प्रोफेशनल काउंसलर के पास ले जाके एक IQ टेस्ट भी करा सकते हैं टू सी कि उसका IQ स्कोर, इंटेलिजेंस क्वोशंट कितना है, एंड व्हाट कैन बी डन टू हेल्प दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. Having a flexible lesson plan. I'm sure आप सब लोग lesson plans बनाते होंगे. Anyone who has not yet prepared a lesson plan? I'm sure ऐसा कोई होगा नहीं.
सबने लेसन प्लान्स तो बनाए ही हैं. सो व्हेन वी मेक अ लेसन प्लान, हम उसमें देखिए लिखते हैं मेथोडोलॉजी. क्या टाइप की मेरी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, क्या रीडिंग मटेरियल मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, मेरा इसका इवैल्यूएशन पैटर्न क्या होने वाला है. सो वी रेडी टू मेक सम एडजस्टमेंट्स in the lesson plans that you have created. So according to the type of diversity in my classroom, I should be able to mend, adjust my lesson plan. So the child, as I said, could be gifted. मैंने एक टर्म यहाँ मिस कर दिया, which is ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. अब यहाँ पे जब बच्चा आता है तो ही इज एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव. जनरली बच्चों को मेडिकेशन के थ्रू उनकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है. When it comes to schools who deal with kids who have ADHD, तो उनका ना सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग होता है. चेयर, जिन चेयर्स पे हम बैठते हैं वैसे न होते हुए ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू बहुत अलग अलग टाइप के उनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स किए जाते हैं. अब जो बच्चा है जिसका ना जैसे एक जगह पे वो बैठता नहीं है, तो चेयर का जो बेस होता है उसके बीच में एक बड़ा रबर बॉल रखा जाता है. So the child continuously bounces on that rubber ball. So his need to be doing something yet sitting in one place is what is important. So हमें occupational therapy, speech therapy, बहुत बार हमारे पास बच्चे स्टटर लेके आएंगे या तोतला बोलते हुए आएंगे या फिर बच्चे लड़खड़ाएंगे बोलते हुए टाइम. तो ऐसे जब स्टूडेंट्स आते हैं तो कौन से टाइप की स्पीच थेरेपी होती है इसके बारे में भी अगर आप पढ़ लें थोड़ा तो आप उस बच्चे को हेल्प कर पाएंगे. देन इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ग्रोइंग साइड बाय साइड टू द बेनिफिट ऑफ ऑल. Kids who have certain gifts or are gifted students, उनके creative thoughts abilities बहुत ज़्यादा होते हैं. They are very good musicians, they are painters, they will make certain things out of waste, etc. So इसके having an inclusive classroom has advantages that other students will also be able to learn certain things from them and help them. Coming to the last part of the presentation, which is NEP 2020 and inclusive classrooms. So we need to address diversity in terms of what are the physical needs, physical disabilities, the academic issues that can arise out of it. जैसे होता है बच्चा अगर उसको partial blindness है, so when we write exams or we give a writer to somebody, how much time extra do we need to give them? Do I have the appropriate reading material to be provided to the child? Is my library equipped so that the child who has issues regarding his eyesight or maybe having deafness, am I empowering that child in some way? What am I doing? So academic needs को उसके ध्यान में रखना है, and at the same time when I talk about psychosocial needs, और हमारी क्लासरूम में सबसे ज्यादा issues जो रहेंगे इसके रहेंगे psychosocial. The kind of clothes that I wear, मेरी क्लास में लोग हैं, I am a farmer son, मेरी मदर एक मेड है या मेरे फादर का एक पान ठेला है या मेरे फादर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है. The kind of things that I have in my life, the kind of watch that I wear, the kind of mobile phone that I carry, इसकी वजह से क्या मुझे inferiority complex आ रहा है, मेरा confidence dip खा रहा है, या कहीं मैं कुछ ऐसी चीजों में लग रही हूँ जो मैंने करनी नहीं चाहिए. थेफ्ट, काफी बच्चे पीयर प्रेशर में कि नहीं आई एम गुड, मेरे पास पैसा है, थेफ्ट की तरफ भी जाते हैं. कुछ बच्चों को एडिक्शंस लगते हैं, पीयर प्रेशर में आके पीपल टेक अप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वीड, very common things these days. So addressing the psychosocial needs of the student becomes my priority. So what should a teacher do? A teacher has to bask in the richness of inclusive system. I should have belief, I should have attitude, I should have the necessary skills and knowledge to teach to an inclusive classrooms. ये एक डॉक्टर स्मृति नाम का
नाम की लेडी ने उनके प्रेजेंटेशन मैंने ये स्लाइड लिया, रियली लाइक दिस बास्क कंसेप्ट कि believe that yes, I have in it me what it takes to deal with an inclusive classroom. I have the right kind of attitude without any bias, without any preconceived ideas or notions. I have the necessary skills to deal with students belonging to diverse academic needs, and I have the necessary knowledge to address these issues. That's the crux of the inclusive system. So focus on campus design and planning. How my campus should be. What infrastructural changes should I make in my institute ताकि मेरा campus friendly रहे to deal with the diverse students that will come. Reflect on how language is used. जब होता ये है, जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, when I talk about they, उन बच्चों को मतलब क्या? उन बच्चे मतलब हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. So use the terms such as autistic, terms such as kids with special needs, terms such as we have students having slow learners or average learners. So the kind of language that we use in classroom should not be discriminatory. डेरोगेटरी तो ऑब्वियसली नहीं, हम करते ही नहीं है ऐसा, बट डिस्क्रिमिनेटरी भी ना हो. Building faculty capacity. I urge once again each and every one of you कि जब आप ये faculty induction program खत्म हो, प्लीज आप आपके प्रिंसिपल डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करें, एक सेशन लिया जाए for everybody to make them understand what are the type of learning disabilities and how we can help the students who come to us with these issues. Ensure the technology is accessible. You have, if students come to you with certain things, तो आपके पास उनको डील करने के लिए ब्रेल बुक्स हों या ऑडिटरी बुक्स हों या certain kinds of things should be there with you to help them in this cause. So two things we are going to talk about is enabling them and empowering them. If you can see the picture over here, equality does not mean providing them the same platform, but equity means ensuring them that everybody has the right platform, the right kind of tools, so that all of them are on the same page. I hope I have made myself very clear. I would just like to close by saying that if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So thank you so much. If you have any questions, please feel free to ask. Anyone? Any questions? हेलो Yes. मैडम, आपने कल्चरल डाइवर्सिटी की जो बात की थी, जी. उसमें 2018 में एक प्रोग्राम चालू किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का. Okay. तो अगर सपोज उसका प्रोसेस क्या है मैडम, अगर हमको वो प्रोजेक्ट लेना है तो? So I have no idea about how the project, उसके क्या rules है, but I'm sure अगर UGC का होगा उनके वेबसाइट पे you will get all the things, or if you can Google this एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट, आपको जरूर उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ से आप उसको भर सकते हैं. अच्छा, और मैडम एक और चीज़ था, जैसे अपन डाइवर्सिटी की जो बात करते हैं, क्लासरूम की डाइवर्सिटीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. जैसे एक तो एनएसएस के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, फिर Okay. एनसीसी के अपने ऑब्जेक्टिव्स है, स्पोर्ट्स वाला एक है. तो एक क्लासरूम में ये सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, Right. है ना? और उसमें फिर डिसेबिलिटी वाले भी स्टूडेंट रहेंगे, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, अगर है तो मेरे कॉलेज में, नहीं तो नहीं. Right. अब इसमें मैडम एक अल्टरनेटिव एग्ज़ाम है. अल्टरनेटिव एग्ज़ाम का एक गाइडलाइन आया है नागपुर यूनिवर्सिटी का. Okay. उसमें बेसिक प्रॉब्लम ऐसा है कि हमको प्रोसेस ही नहीं पता है अल्टरनेटिव एग्ज़ाम, जो बच्चे बाहर जाते हैं इस सारे कैंप में. तो हाँ. अल्टरनेटिव एग्ज़ाम का बेसिक प्रोसेस कैसे हम लोग उसको
फाइंड आउट करे कि हाँ ये बच्चा अभी एनसीसी कैंप में गया है, ये बच्चा भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के कैंप में है या एनएसएस के कैंप में है, स्पोर्ट्स में है, तो अल्टरनेटिव एग्जाम का यानी प्रोसेस हम लोग कैसे उसको डील करें यूनिवर्सिटी के साथ। Okay, so are you talking about internal exams which are to be नहीं, conducted by the इंटरनल नहीं है college? मैडम, वो अल्टरनेटिव एग्जाम का जो गाइडलाइन है उसमें यूनिवर्सिटी उनके एग्जाम शायद चेंज कर देती है वो टाइम, जैसे So सपोज I am अगर sure university must be taking out a notification. I am sure colleges को पहले अप्लाई करना होता होगा कि हमारे कॉलेज में से इतने बच्चे फलाने कैंप गए हैं, इतने बच्चे यहाँ गए हुए हैं, and on the basis of that a number must be calculated, and I'm sure RTMNU must be coming out with a notification saying that on such and such dates these exam will be conducted. नहीं, ऐसा नोटिस तो अभी तक आया नहीं है मैडम, कभी भी नहीं आया हुआ है। वो प्रोसेस है लेकिन ऐसा वो तो मुझे होना नहीं चाहिए फाइंड सर, फाइंड बट आउट नहीं कर पा रहा हूँ मैं उस प्रोसेस को। तो आप जरूर एग्जाम सेक्शन जाएंगे तो आई एम श्योर दे विल हेल्प यू आउट विद दिस। या आपकी यूनिवर्सिटी में जो क्लर्क हैं जो एग्जाम सेक्शन या एग्जाम डिपार्टमेंट से हमेशा हम्म। काम करते हैं, अगर आप उन्हें एक लेटर दे दें मेंशनिंग ऑल दीज इश्यूज, आई एम श्योर यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देम। ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैम। Yeah. Anyone else who has any questions? I don't. Is there anything in the chat box? No. All right हेलो then. मैडम। Yeah. हाँ मैडम, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जी प्लीज गो अहेड मैम। हाँ, मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी, एक्चुअली मेरा डीएड बीएड एमएड पीएचडी सब हुआ है, तो डीएड के बाद में मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। तो 5th to 7th स्टैंडर्ड मुझे दिया गया था, तो वहाँ 5th स्टैंडर्ड में एक लड़का था जो यानी फिजिकली यानी पैर से भी वो ठीक से चल नहीं पाता था। उसके बाद आंखों से भी उसको ठीक से दिखता नहीं था, यानी बहुत बड़ा चश्मा था उसको। उसके बाद उसको सुनाई भी नहीं देता था, मशीन लगाई थी उसने, और बहुत स्लो लर्नर था वो। तो ऐसा यानी एक तो एक बिल्डर का बच्चा था, वो बहुत बड़े बिल्डर का बच्चा था, इसलिए उनको उस बच्चे को अंध विद्यालय में भी नहीं डालना था या किसी यानी अलग स्कूल में नहीं डालना था, नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ाना था। रेप्यूटेड स्कूल थी वो, बजाज नगर की, उसमें मैं पढ़ाती थी, परांजपे स्कूल में। तो तब मैं नई नई लगी थी, तब मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे को यहाँ क्यों रखे हैं, क्योंकि उसके साथ में पढ़ाना बोले तो बहुत मुश्किल होता था स्टार्टिंग में। लेकिन मैं भी सब्जेक्ट पढ़ाती थी तो मुझे भी उसको पढ़ाना ही होता था। तो 5th to 7th तक के वो लड़का था मैडम, हमको उसको थोड़ा सा अलग से अलग टाइप में भी पढ़ाना पड़ता था। एग्जाम के टाइप में भी उसको अलग से लेके बताना पड़ता था, उसको टाइम भी ज्यादा देना पड़ता था, सभी चीजें रहती थी। लेकिन ये सब करने के बाद वो लड़का यानी पासिंग तो ले ही लेता था आराम से। लेकिन ऐसा लगता था कि देखो, अगर उसको वो स्कूल में डालते थे, लेकिन वो मिक्स भी हो गया था सब बच्चों के साथ में, और बाकी बच्चे भी उसके साथ अच्छे से रहते थे। पहले उसको अलग अलग रखते थे, लेकिन पूरे मिक्स हो गए थे, यानी स्कूल में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक अलग बच्चा हमारे स्कूल में है करके। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, स्टार्टिंग में मुझे एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाद में तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो हमेशा के लिए याद है। बहुत बहुत बढ़िया मनीषा मैम। और जैसा कि आपने कहा कि कई पेरेंट्स ऐसा होते हैं जो लेबल नहीं करना चाहते हैं बच्चे को कि मेरा बच्चा अलग है, क्योंकि वो फुल ब्लाइंड भी नहीं था, पार्शियल ब्लाइंडनेस था। और इसीलिए स्कूल्स में अभी आजकल कंपल्सरी, यू कैन नॉट डिनाई एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, because it's the right of every child to have a equitable, quality education. तो जब स्कूल्स तैयारी, जैसे आपने कहा पहले बच्चे थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, नॉर्मल है, किसी के लिए भी है, पर जब एक माहौल बन जाता है, बच्चा भी उसके साथ डेवलप होगा, बाकी बच्चे भी डेवलप होंगे। और एनईपी 2020 अगर एक कर देती है, इंक्लूसिव क्लासरूम्स अगर रियलिटी बनती है, तो आई गेस हम सबने कोशिश करनी चाहिए वन स्टेप फॉरवर्ड to at least be prepared, and let's see what kind of diverse classrooms we have. It's going to be challenging for us also. Yes, madam. Very nice session. Any more question? हॅलो मॅम. हाँ बोला. हॅलो मॅम. मॅम, मला एक प्रश्न होता। मुझे एक क्वेश्चन था कि जनरली छोटे बच्चों में ऐसा उल्टा कभी बी को डी कर देते हैं, पी को क्यू कर देते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग?
देखिए, बच्चे अगर बहुत छोटा बच्चा होगा नर्सरी वगैरह का, तो विद राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है। अब जो स्कूल टीचर्स होती है ना, वो जनरली पेरेंट्स को बताती हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स का जब रिजल्ट आता है कि दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स। पर अगर बच्चा लर्निंग के टाइम में बाकी की भी गलतियां कर रहा है, एंड इफ दिस कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट 1 year, एंड along with this बाकी के भी सिम्टम्स अगर हमको दिख रहे हैं रिलेटिंग टू लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिकली डिसलेक्सिया, बात करने में दिक्कत होना, पुअर कंसंट्रेशन होना, शाय रिजर्व रहना, अगर ऑटिज्म की तरफ है थोड़ा सा, तो डिपेंड्स, एकदम लेबल मत कीजिए, थोड़ा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, स्कूल टीचर से बात कीजिए। Pediatrician would be the person who can help you to tell कि okay, now we need to talk to a professional like maybe a counselor, जो एक छोटा सा रिटन टेस्ट या उनके पास बहुत सारे पजल्स वगैरह भी होते हैं, जिसके थ्रू क्या बच्चा डिसलेक्सिक है, और अगर है तो किस लेवल का डिसलेक्सिया है, ये भी डायग्नोज किया जा सकता है। सो बी का डी करना इज नॉट डिसलेक्सिया, इट्स जस्ट वन ऑफ द सिम्टम्स आई कैन से कि ऐसा होता है, बहुत कॉमन है, छोटे बच्चे काफी बार करते हैं। थैंक यू मैम। ओके, शीतल मॅडम आहेत का? हो आहे मॅम, आहे. Yes. So now I request Sheetal ma'am to kindly propose vote of thanks. ओके मॅम, थँक्यू. हॅलो, आवाज येतोय मॅम माझा? Yes, yes. आजच्या सेशनमध्ये डॉक्टर मुक्ताई देब यांनी आपल्याला स्टुडंट डायव्हर्सिटी अँड लर्निंग डिफिकल्टीज याबद्दल वेगवेगळ्या उदाहरणातून आणि खरंच सोप्या भाषेतून जे काही मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्याला टीचरचा रोल कसा असला पाहिजे क्लासरूममध्ये, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या लर्निंग डिसॅबिलिटी काय आहे, डिफरंट लर्निंग स्टाईल कशा वापरायला पाहिजे, कुठल्या डिफरंट लर्निंग स्टाईल्स आहेत आणि आपल्या टीचिंगमध्ये त्या कशा असायला पाहिजे, त्याचबरोबर वेगवेगळे इव्हॅल्युएशन पॅटर्न कुठले असायला पाहिजे, डिफरंट स्टुडंटसाठी डिफरंट इव्हॅल्युएशन पॅटर्न्स असले पाहिजे, याबद्दल संपूर्ण आपल्याला माहिती दिली. त्याचबरोबर नवीन जो आपला NEP 2020 जो काही कन्सेप्ट आहे, त्याच्यामध्ये जो एक्सक्लुझिव्ह क्लासरूम कन्सेप्ट आहे, तो त्यांनी आपल्याला समजावून सांगितला. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. त्याच प्रमाणे मी UGC HRDC नागपूरतर्फे त्यांचे आभार व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे आपल्या सगळ्यांच्या, खरंच आपल्याला ज्या काही मार्गदर्शन करत आहे आपल्या प्रीती धार्मिक मॅडम, आणि सगळ्यांना समजून घेत आहे, आपल्या ज्या डिफिकल्टीज येतात त्या नेहमी त्या तत्पर असतात आपल्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी, याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. त्यानंतर ज्यांनी आपल्याला ही संधी प्राप्त करून दिली, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष या FIP ला जे सहयोग करत आहे, त्यांचे मी आभार व्यक्त करते. आणि इथे ज्यांनी पार्टिसिपेट केलेलं आहे त्या सगळ्या पार्टिसिपंटचे मी आभार व्यक्त करते व हे सेशन इथे संपले असं जाहीर करते. धन्यवाद. Thank you so much, madam. Thank you so much, Dr. Muktai ma'am, once again. Thank you, ma'am. My pleasure. Bye-bye, everyone. Have a good day. Happy Good learning. day, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you all of you. यहाँ पे रुकते हैं. We will meet at 1:30 for our next session. Thank you.